President Baerbock, Secretary General Guterres, fellow delegates, ladies and gentlemen. ہم ایک ایسے تاریخی اور تیز رفتار دور میں جی رہے ہیں جو بیک وقت بے شمار مواقع اور بے حد خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہم امن اور جنگ کے درمیان ایک نازک توازن پر معلق ہیں۔ عالمی امن انڈیکس 2024 کے مطابق دنیا اس وقت 56 مسلح تنازعات کا سامنا کر رہی ہے، جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ہم جس دنیا میں آج رہ رہے ہیں وہ اس دنیا سے بہت مختلف ہے جس میں 1945 میں اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی، جب 51 ممالک نے ایک عالمی ادارے کا قیام اس امید کے ساتھ کیا تھا کہ دنیا کو جنگ کی ہولناکیوں سے بچایا جائے گا۔ آج اسی ادارے کو دنیا کے تقریباً تمام ممالک تسلیم کر چکے ہیں، لیکن 80 سال بعد ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہوگا، کیا ہم واقعی کامیاب ہوئے ہیں؟ جواب ہمارے سامنے ہے، نہایت تلخ اور واضح۔ امن، بات چیت اور سفارتکاری شاید اب دنیا کو قائل کرنے یا تنازعات کو روکنے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ طاقت کا استعمال بہت سے مقامات پر غالب آ چکا ہے، اور ہمارے سامنے جو منظر ہے وہ وہی ہے جس سے پوپ فرانسس نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا تھا۔ یہ تیسری عالمی جنگ ہے جو ٹکڑوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا کو درپیش سب سے خطرناک تنازعات میں سب سے نمایاں روس کی یوکرین پر جارحیت ہے۔ فروری 2022 میں ماسکو نے کیف پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس اقدام کے دور تک اثر انداز ہونے والے نتائج پر شاید پوری طرح غور نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ انتہائی بنیادی نوعیت کا فیصلہ تھا۔ ایک ایسا ملک روس جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، اس نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے یوکرین کی خود مختاری اور سیاسی آزادی کو پامال کیا، اس کے علاقے کو ضم کرنے کی کوشش کی، اور آج تک امن مذاکرات میں سنجیدہ شمولیت سے انکار کرتا چلا رہا ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون پر ایک گہرا زخم ہے جس کے اثرات صرف یوکرین تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ یوکرین کا تنازع دیگر کئی بحرانوں کو بھی ہوا دے رہا ہے، اور اقوام متحدہ خود اندرونی تقسیم اور کمزوری کا شکار ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا کہ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حماس نے اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس حملے کی شدت اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنائے جانے نے اسرائیل کو فوری رد عمل پر مجبور کیا، اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہر ملک کو اپنی سرزمین اور شہریوں کے تحفظ کا حق حاصل ہے، لیکن طاقت کے استعمال میں ہمیشہ تناسب کا اصول ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، جو ریاستوں پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جیسے کہ افراد پر۔ اسرائیل نے اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر جوابی حملے شروع کیے، جن کے نتیجے میں فلسطینی شہریوں کو غیر متناسب نقصان پہنچا، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی اور معصوم جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اٹلی نے بارہا ان اقدامات کو ناقابل قبول قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یورپی کمیشن کی سطح پر اسرائیل کے خلاف کچھ مخصوص پابندیوں کی حمایت میں ووٹ دینے پر مجبور ہوئے، تاہم ہم ان افراد یا اداروں کے ساتھ نہیں کھڑے جو صرف اسرائیل کو مکمل طور پر مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس جنگ کی ابتدا حماس نے کی تھی، اور اگر وہ چاہے تو فلسطینی عوام کے تکالیف کو ختم کر سکتی ہے، بشرطیہ کہ فوری طور پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ حماس اپنے دعووں کے برعکس شاید عوام کے درد کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیل کو اب اس جنگی جال سے باہر نکلنا ہوگا، اپنے تاریخی ورثے، جمہوری اقدار، معصوم جانوں اور آزاد دنیا کے مشترکہ اصولوں کا احترام کرتے ہوئے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے صرف جذباتی اپیلیں کافی نہیں ہوتی، خاص طور پر جب وہ صرف دکھاوے کی حد تک ہوں۔ امن قائم کرنے کے لیے حقیقی عملی اور دور اندیش اقدامات ضروری ہیں۔ امن صبر، حکمت اور قربانی مانگتا ہے۔ غزہ کے وہ بچے جنہیں اٹلی اپنے اسپتالوں میں فخر کے ساتھ علاج کی سہولت دے رہا ہے، وہ محض الفاظ نہیں بلکہ عمل کے متقاضی ہیں۔ اٹلی ان تمام فریقین کے ساتھ ہے جو امن کے لیے عملی اقدامات چاہتے ہیں، جن میں یرغمالیوں کی رہائی، مستقل جنگ بندی، حماس کو فلسطینی حکومت سے باہر نکالنا، اسرائیل کا تدریجی انخلا اور بعد از جنگ انتظامات کے لیے
संजीदा बैन-अल-अक़वामी शराकत दारी शामिल है। हम अमरीकी सदर की हालिया अरब ममालिक के साथ तजावीज़ को मस्बत नजरों से देखते हैं और हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। हमें यकीन है कि इसराइल को फलस्तीनी रियासत के क़याम से रोकने या मगरबी किनारे में नई बस्तियां बसाने का कोई हक नहीं। यही वजह है कि इटली ने 2 रियासती हल के हवाले से न्यूयॉर्क इलामिया पर दस्तखत किए। ये इटली का तारीखी और मुस्तकिल मौक़िफ़ है, लेकिन हम ये भी वाज़ेह करते हैं कि फलस्तीन की शनाख्त के लिए 2 बुनियादी शराइत जरूरी हैं, जिनमें तमाम इस्राएली यरगमालियों की रिहाई और फलस्तीनी हुकूमत में हमास का कोई किरदार न होना शामिल है, जो कि तनाज़े का आगाज था। वो इनाम के हकदार नहीं हो सकते। इसी तरह हम एक बार फिर उस बुनियादी असूल के जानिब आते हैं जो कि कानून की हुक्मरानी है, चाहे वो यूक्रेन हो, मशरिक़ वस्ता या कोई भी तनाज़े का शिकार खित्ता। कानून से फरार मुमकिन नहीं। जहाँ अक्ल नाकाम हो जाए वहाँ कानून ही आखिरी सहारा होता है। मोहतरम साथियों, आज हमें खुद से ये सवाल करना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा का वो निज़ाम जो 80 साल पहले बना, क्या वो आज के चैलेंजेस का सामना करने के काबिल है? अगर आलमी इदारे मौसर तरीके से काम ना करें तो सिफारतकारी और मुज़ाकरात महज खोखले अल्फाज हैं। हमें अपनी हदूद को खुद तस्लीम करना होगा और इस हकीकत को समझना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की गहराई में इस्लाहात नागज़ीर हो चुकी हैं। ये इस्लाहात महज नजरियाती नहीं बल्कि अमली, हकीकत पसंदाना और मौसर होनी चाहिए, जो रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए मुश्तरका हल के जाने पेशरफ्त को यकीनी बनाए। हमें ऐसा इदारा दरकार है जो कि फाल हो, शफाफ हो, गैर जरूरी ब्यूरोक्रेसी को कम करे और बहरानों का बरवक्त जवाब दे। इटली के मुताबिक सलामती काउंसिल के इस्लाह में मसावात, जमहूरियत, नुमाइंदगी और जवाबदही जैसे बुनियादी असूलों को लाज़िमन शामिल किया जाना चाहिए। हमें नई मुस्तकिल नशिस्तों या नई दर्जा बंदियों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फैसलों की राह में मजीद रुकावटें खड़ी करेंगी। हम तासुबात के बगैर तमाम तजावीज़ पर बात करने को तैयार हैं, बशमूल यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप की तजावीज़ के, बशर्तिया कि इस्लाहात चंद मखसूस ममालिक की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बेहतर नुमाइंदगी करें। हमें न सिर्फ इदारों बल्कि बैन-अल-अक़वामी कवानीन, मुआहिदों और ज़वाबित को भी नए अमली तनाजुर के मुताबिक ढालना होगा। मिसाल के तौर पर हिजरत और पनाहगज़ीनी के कवानीन एक ऐसे दौर में बनाए गए जब बड़े पैमाने पर गैर कानूनी हिजरत या इंसानी स्मगलिंग का वजूद नहीं था। आज यकतरफा और नज़रियाती अदालती तशरीहात इन तमाम कवानीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय कानून शिकनी का जरिया बना रही है। हम और दीगर यूरोपीय ममालिक इस मसले पर आवाज बुलंद कर चुके हैं और काम जारी रखे हैं ताकि ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो न सिर्फ इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे बल्कि हर कौम को अपने शहरियों और सरहदों की हिफाजत का हक भी दे। बैन-अल-अक़वामी बिरादरी को इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारे मुजरिमाना नेटवर्क्स को इंसानी हुकूक के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। अक़वाम मुत्तहिदा को दोगले मयार खत्म करना होंगे, खास तौर पर मजहबी आज़ादी के सिलसिला में, जहाँ दुनिया भर में लाखों ईसाई महज अपने ईमान की बुनियाद पर जुल्म, जबर और कत्ल-ए-आम का शिकार हैं। हमें अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान नए शराकतदारी मॉडल्स की जरूरत है जो आजिज़ी, शऊर और बाहमी एतमाद पर मबनी हो। इटली खास तौर पर अफ्रीका के लिए मीट प्लान के जरिए इस सिमत में सरगर्म अमल है। गुज़श्ता 3 सालों में हमने 14 अफ्रीकी ममालिक के साथ ताउन में नुमाया इजाफा किया। हम अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, G7, अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी तरक्याती बैंक, बैन-अल-अक़वामी मालियाती इदारों और दीगर शराकतदारों बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यही ताउन हमें जुलाई में इथियोपिया के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के 3रे फूड सिस्टम समिट की मेजबानी का शर्फ भी दिला चुका है। हम अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों जैसे लोबेदो कॉरिडोर पर भी काम कर रहे हैं और अवामी और निजी शोबे के दरमियान शराकतदारी को फरोग दे रहे हैं। अलजज़ायर में 3600 हेक्टेयर रेतले इलाके को काबिल काश्त बनाया जा रहा है, जिससे 6 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। हम अफ्रीका में मसनूई ज़हानत के फरोग के लिए
AI हब भी कायम कर रहे हैं और ब्लू रोमन केबल की तोसी से मशरकी अफ्रीका को यूरोप और भारत से जोड़ रहे हैं। इटली अफ्रीका में दीगर से मुख्तलिफ है। हम वसाइल के इस्तेहसाल के लिए नहीं बल्कि अफ्रीका को खुद कफील बनाने, रोजगार के मौके पैदा करने, मुस्तहकम हुकूमतों और महफूज माशरों के कयाम के लिए शराकत दारी कर रहे हैं। इस सफर की कामयाबी अफ्रीकी ममालिक के कर्जों के हल के बगैर मुमकिन नहीं। इटली आइंदा 10 सालों में दुनिया के कम तरक्की याफ्ता मुल्कों के कर्जों को मकामी तरक्याती मंसूबे में बदलने का इरादा रखता है, जिससे 235 बिलियन यूरो से ज्यादा के कर्जे अवामी बहबूद पर खर्च होंगे। ये सिर्फ इक्तिसादी मसला नहीं बल्कि इंसाफ, वकार और मुस्तकबिल का सवाल है। मोहतरम साथियों, 30 साला अंधी तकलीद पर मबनी आलमगीरियत अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। इसके नुकसानात को नजरअंदाज किया गया और आज हम जिन मसाइल का शिकार हैं वो हैरान कुन नहीं बल्कि मुतवक्के थे। अगर हम गैर हकीकी और नाकाबिले बर्दाश्त पैदावार के मॉडल्स जैसे के मगरिब के कुछ ग्रीन प्लान्स को ना रोकते तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती थी। इन मॉडल्स ने न सिर्फ सनतों को तबाह किया बल्कि कमजोर तबकात को शदीद मुतासिर किया। दरमियाना तबका नीचे गिर रहा है और माशी बोझ नाकाबिले बर्दाश्त बनता जा रहा है। माहौलियाती पॉलिसीज के मौजूदा सख्त रुझानात ने यूरोप की ऑटो इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अमेरिका में मुलाजमतों का खात्मा किया और आलमी मुसाबकत को शदीद नुकसान पहुंचाया और सबसे अहम बात, जमीन की मजमूई सेहत में कोई खास बेहतरी नहीं आई। ये माहौलियाती तब्दीली का इनकार नहीं बल्कि अक्लमंदी की बात है कि तदरीजी तब्दीली, तकनीकी गैर जानिबदारी और इंसान को मरकज में रखकर पायदार तरक्की, जैसा कि मैंने बारहा कह चुकी हूँ कि वीरानी में कुछ भी सब्ज नहीं होता। मोहतरम साथियों, आज हमने सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह मना रहे हैं बल्कि इटली की अक़वाम मुत्तहिदा में 70 साला रुकनियत का जश्न भी मना रहे हैं। यह हमें इस इदारे के बुनियादी असूलों के दिफा की दोहरी जिम्मेदारी देता है। हमें अपने मौजूदा औजार मुयस्सर बनाना होंगे ताकि हमारी पॉलिसियां और इक़दामात वक्त की जरूरत के मुताबिक हों। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सब कुछ जूं का तू रहने दें और आसान रास्ते पर चलें, या फिर अपनी कौमों को ये दिखाएं कि हम इस तारीखी लम्हे को जाया नहीं होने देंगे, एक ज्यादा मुनसिफाना, महफूज और इंसान दोस्त दुनिया के कयाम के लिए। जैसा कि सेंट फ्रांसिस, जो कि 41वीं तारीख के सबसे अजीम लोगों में से हैं और जिनके नाम पर इस शहर सैन फ्रांसिस्को का नाम रखा गया जहां अक़वाम मुत्तहिदा कायम हुई, उन्होंने कहा कि मुश्किल लड़ाइयां सिर्फ उनके लिए होती हैं जिनके अंदर गैर मामूली हौसला होता है। मुझे यकीन है कि वक्त आ गया कि हम वो हौसला दिखाएंगे। शुक्रिया। It is time, I believe, to show that courage. Thank you.